So, welcome, Shazia. So excited to have you here as a part Thank of you. this career coaching session in Elevate. I was actually waiting to see your face, and it looks like the whole space is bright now, looking at Thank your you. face. Thank you. You are very kind. Okay. So tell me now, how is it going? कैसा रहा आपका दिन? How do you want to take it forward? What is the main thing that you're looking for? बताइए मुझे ताकि हम अपना डिस्कशन टारगेटेड रहे. And I want you even to take notes because I'm also taking notes, and so that we can have Okay. a productive discussion and you have some, Yes. action items to follow through, which actually gives you some kind of, a good direction and clarity. As you Okay. mentioned to Sure. me that we will have basically a clarity and a direction call, strategy call. Yeah. Yeah. Huh. Okay. Whatever So whatever every language you're comfortable in, it's fine with yes. me. Yeah, I Okay. don't have Okay. any issue. Whatever language is Okay. comfortable. Okay. Okay. So yes. First of all, right now I'm interested in working from home opportunities. तो वैसा ही कुछ जॉब मैंने अभी लिया हुआ है. Okay. And it is a Saudi based company, so they're working it's according to their working times, Okay. work times. And so abhi kya hai, it's that I am on contract basis, project basis. Hmm. If Okay. that project is completed, then I have to look for others. That is how I prefer it. But this is work wise. Now what I'm looking forward to it is that I want to do something mere khud se. And this is how I connected with you also. I saw one of your status in which you had mentioned that about this happiness coach we help in achieving, what people would like, where people are confused. Mhm. So that is why I wanted to approach you and know Sure. more about how and what you can do Yeah. to help. Yeah. Sure, sure, sure. That's great. So I will call you Farheen so that because we Yes. both have the same name. Same That's name. so Similar that's so names. Yes. great and that's so nice. So I will Mm. call you Farheen. So now, Farheen, yes. So the reason why I say about happiness, why I talk about happiness, and why I am very passionate about career is this has been my story as well. Like if you see, I have 13 years of corporate leadership experience in big companies. Like I was working here in Hyderabad. I started with a big company like ADP. Okay. It is a CMM level 5 Fortune 500 company where they sent me to US as well. And then I moved to Dubai, and there I started my career. I worked with Emirates Airlines, DP World, Dubai Trade, and many big companies basically. But then what I realized is, like, people are not happy. People are not happy, and I was also actually, my dream job, if you would ask me at that point of time, if someone would ask me, was that I should be a manager in a big IT firm. So when I finally became a manager, I was like, now what? What is this? What I've always wanted? Like, there is no limit. Like, you want to be this, then you want to be this, but there was Yes. no fulfillment or there was no happiness. And Yes. thus started my coaching journey, because I was a very passionate person. Whatever I do, I like to do it the best way. If I am actually doing some work and I am not feeling good about it, then I was very worried. And then I started my coaching, because it was affecting in all areas of life. As you know, career is the main thing which actually, Mm. because we are working round the clock. So it's very important for us to be happy. Otherwise, the Yes. environment of the house, and it affects everything else. So that is the Yes. main reason why I took this as my niche, wherein when I started coaching, I know the pain of people who work for different companies, who have, Mm. this thing to do something more, but they're not able to do because of whatever management, because of colleagues, Yes. because of office, this thing, politics, or whatever it is. There are many issues that we face. So now I was really, very happy to connect with you, because I saw in you the same thing, that you wanted to grow more, because otherwise people get into their comfort zone, and it is like, Mm. chal raha hai. They don't like हाँ. to think what has to be done next, because at one point of time everyone was like that. Even I was like that. अच्छा job security hai, then we don't need anything else. ऐसा Yes. attitude Yes. है. लेकिन when I met you, I saw that kind of spark in you, where you wanted to go more, you wanted to do more. And the same thing, Yes. like for me, Mm. I wasted like
really so many years thinking that should I move into coaching or not? Should I move into coaching or Uh, not? I was going one step ahead, then one step backward. So it's like, when you keep on going right and left, then you cannot move ahead. So yes. that's what was happening. And then when I took up coaching myself, then it gave me a clear direction, and then I was able to figure out what is my real purpose and what I wanted to do. So I think now for your question, you told me that you are basically looking for yeah. So to answer your question, you asked me about happiness and how is it related with this. I hope I answered your Yes. question. Do you understand? When we have a happy career, I feel that impacts every area of our life. So happiness is basically related with what we do every day, right? And if Yes. that Yes. makes us happy, if what we do makes us happy, then there is nothing that can stop us, because when we are happy, we'll have a good career and we'll be more productive and we'll be successful also. So people have Yes. this mindset that they will be happy when they will be successful, but people hardly realize it's the other way around. Only if you Yes. are happy, you can be successful. Yes. It's that way. And I mean, few people recognize that, and they try to be in a good this thing so that they can get good results for themselves. So that is first thing. And the second thing, now coming back to career. So what I noticed is like you have very good specialization. Basically, you mentioned to me that you have done masters in economics, and you even have in business administration, right? Finance. In finance, sorry. Yes. You have in finance, and also you are masters in both of these fields. Yes. So Yes. that's good to know. And now, like, you're working as a project manager, are you using these kind of things, like whatever you have as a background in has your project manager job been able to utilize your background as well? That's what was my question. To an extent, yes. To an extent, Okay. yes. Okay, Yeah. great, great. Because that feels good, that we have been Yes. able to, because we have invested quite a lot of time in this, and then we get the domain knowledge and expertise, because that helps in every area, I feel. Yes. So are you? I know that when we met, also you had mentioned to me that you wanted to grow in. You mentioned to me Insta, and you also mentioned to me that you're looking for a freelancer thing. What I noticed Yes. is, like, if you wanted to have some this thing, what about LinkedIn? Are you targeting LinkedIn as well? Because that's more of a professional network, if you notice. LinkedIn is, LinkedIn, right? Yes. 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 You Yes. know LinkedIn, yeah. So LinkedIn is especially for career opportunities. You won't believe it. Like many jobs, like they are uh, uh, materialized by contacts on LinkedIn, because people know each other Yes. and then they refer and everything. So if what is the one thing which I would this is kind of feedback. We don't give suggestion in coaching because it's very subjective. So I would say what I would have done in your place, right? If Yes. I would have wanted to, like you were mentioning to me about Insta, it's okay to grow in Insta, no problem. But if you are looking, so can we actually clear out what is it that you are targeting? Because now I know that now you are into project management. Can I just say your target job would be to freelance in like training job? That's what I Yes. could make out from what Yes. you Yes. said, right? Yes. You are trying to freelance in training. You are not as such looking for managerial projects, correct? You like training and coaching. That's what you like. Do you No, have a because yeah. yeah? Tell me. Yeah, tell me, please. Yeah, in this actually since the beginning when I was in school itself, my father was also into various not in one place. He used to try out many things, and he had that liberty in his career. He had that liberty to change in the such a way. But for me, even today, I had attended one webinar of data analysis. So I am trying various things to see which catches my holds Interest. my interest in this Okay. stage, because in Okay. the studies and during the studying stage I understood that economics and finance was interest, Hmm. that is
my foundation. But today, as of today, after working in, so many forms, like I had mentioned, I was also a center head for a training institute. So even though we are not required to know about the courses we sell, at least we should have a basic idea whether to understand, while even for hiring instructors. So we should have a basic idea how much this guy knows. Is he Definitely. teaching it the right way? And if we, even if we see the material, we should be able to understand. So in that way, I have a lot of engineering knowledge also, which I did not want to, but I got it through in my stages of life. So right now I want to do something like, which is, where I can because I see many instructors, they could put up courses on Instagram and LinkedIn just to catch the pulse of this younger generation, which is now they are moving on Instagram and LinkedIn. So I would like to concentrate on that audience, because people don't know what to learn. They're trying on various things. Even if you look at my LinkedIn profile, you'll have various certifications which sometimes may not be linked to each other. Mm-hmm. Because I'm just trying on certain things that which will catch my interest, what will hold my interest. So in that way, I end up doing monthly or weekly courses. Now I have understood that holding on to one thing and doing, so that is why I'm interested in training. And Mm. it's also said, if the more you train and if their lives get better, you feel very good. Yes, That yes, true, yes, I've tried to add on to someone's life. So true, true. yeah, So, that is why I said freelancer. correct. Now I'll give you one situation. Let's do a role play. So Okay. now, if I come and like now tell you for Farheen, like just imagine from today, okay, from tomorrow. So you don't Hmm. have to work. Don't think about money. Don't think about time and anything. You just you have to just do what you love. Okay, Okay. there is no time constraint, there is no money constraint. It's as if like you can do whatever you want. There is no Hmm. binding on you that you need to do, and forget also about whatever you have done till now. Okay, Okay. forget Okay. forget about everything. But there might be Okay. something, you have done so many things over the past, but there is something that you might have thought, अरे यार कि मैं अगर कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये करना चाहूंगी. यू अंडरस्टैंड Uh-huh. व्हाट Yes. Yes. क्योंकि क्या होता है, आप देखते हैं हम जब जाते हैं ना शॉप में, इतने चीजें जब हमको दिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इतने चीजें हाँ. लटकते रहती है, हाँ. हम ये खरीदे या वो खरीदे. हाँ. मैंने अपना बताया ना आपको, मैंने काफी टाइम अपना हाँ. ऐसे ही गुजारा. इसमें अच्छा. उसमें मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी ये करूंगी, जब तक मुझे ये डायरेक्शन नहीं मिला था. क्योंकि क्या होता है कि हम वो पोजीशन में रहते हैं तो हमको कोई किसी की मदद चाहिए होता है, कोई हमको हाँ. एक साथ में एक रास्ता दिखाए. जब हमको रास्ता दिखाता है तो इट्स एज इफ के पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है हमको 360 डिग्रीज. तो मैं आपके साथ वही करना चाह रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें होते हैं, हम जब अपने करियर में भागना शुरू करते हैं ना, वो जो बोलते हैं कि भाग दौड़ जब शुरू होती तो हम बहुत चीजें पीछे छूट जाते हैं. तो आई वॉन्ट यू टू टेक ए पॉज, maybe tomorrow, whenever you have time now, just take a pause and think clearly, where you are in a very relaxed environment, where you realize कि ऐसी कोई चीजें हैं जो मुझे रियल पसंद है. क्योंकि ऐसा कोई करियर नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें हम करियर नहीं बना सकते. ये हमको पहले नहीं मालूम था एक्चुअली, लेकिन अभी हमको ये अवेयरनेस हो रही है कि हर चीज में हम ग्रो हो सकते हैं. लेकिन हाँ. आपका ग्रो होने में चांस किस में रहेगा? ऐसी फील्ड में जो आपका पैशन है. Passion क्योंकि है. जी, जो आपका दिलो जान से पैशन है, कि अगर आपको पैसे भी नहीं मिले उसके लिए, आप करेंगे वो. हाँ. It's okay. समझ Yes. समझ रहे हो आप? हाँ. क्योंकि हाँ. अगर हाँ. आप ऐसे करोगे, ऐसा सोचोगे कि सपोजिंग आपको कल से आपकी जॉब के लिए पैसे नहीं मिले, करोगे क्या आप? हाँ. नहीं करोगे. मैं हाँ. बोल नहीं रही करो. हूँ एक चीज, लेकिन हमको ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए हमारी लाइफ में कि अगर हमको पैसे भी नहीं मिलेंगे तो हम करेंगे वो ऐसी कोई चीज, तो हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे. इन द सेंस करते हाँ. हाँ. हमको दिखेगा नहीं कि वी आर डूइंग वर्क, वी विल बी एक्चुअली एंजॉयिंग द वर्क that will Enjoying it. Yes. impact every area of our life, not just वर्क, बट इट विल इम्पैक्ट अवर. हम अच्छा खुश रहेंगे तो घर में अच्छा माहौल बना सकेंगे, हेल्थ पे इफेक्ट होगा,
ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमारे बेटर होंगे कि अगर जी हम ऐसे करेंगे तो अब आप गुड स्टैंड पॉइंट पे है। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले मैं एक डेल की एम्प्लॉय से बात कर रही थी। मेरे पास अच्छा वो भी मुझे उतना ही बुरी थी, मुझे मार्केटिंग का वो मेंटरिंग का चांस है, मुझे वो कंप्यूटर का कोर्स का चांस है, मुझे इसका चांस है। वो तो अभी अभी उसका करियर शुरू हुआ था और मैं उसको वही बोली कि लेकिन वो भी वही गलती कर रही थी जो मैं कर रही हूँ। मैंने बोला मैं तुम्हारे लिए एग्जैक्टली तुम्हारे लिए ही आई हूँ ये प्रोफेशन में, क्योंकि मैंने भी यही गलती की जो तुम अब करने जा रही हो, कि लोग बोलते हैं उसमें प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं उसमें चले जाएंगे। मैं हाँ बोल रही हूँ अपनी कंफ्यूजन सिचुएशन, होती है। क्योंकि मुझे मालूम था मेरा पैशन लाइफ का शुरू से ही मुझे पता था। मेरे मम्मी ने मुझे नज्म सिखाई थी कि करूं दर्द-ए-मंद के गम का मुदाफा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। तो मुझे जब से ऐसा था कि मुझे मुझे दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता था कि उन लोगों को कुछ डायरेक्शन मिले ऐसा। और मैं बोली भी हाँ थी उनके कि मैं सोशल वर्क में जाऊंगी, पर इन लोगों ने क्या बोला मुझे कि नहीं तुम बहुत स्मार्ट जो लोग रहते हैं वो कंप्यूटर में जाते हैं, उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। करके मैंने पूरा एमसीए पढ़ा, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट लिया, जो भी किया। तो मैंने डिफरेंट फील्ड में चले गए। अगर मैं शुरू से शायद साइकोलॉजी और इसमें जाती थी तो शायद मेरी लाइन काफी मैं अभी किसी डिफरेंट उसमें होती ना, अभी मुझे बाद में हाँ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो अभी हाँ मेरा अभी वही है मिशन के ऐसे लोगों जो जो बस चेंज कर रहे हैं अपना करियर, जैसे आप हाँ नाउ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ हाँ चेंजिंग ए करियर। तो आप लोग को हाँ ये मतलब ये जो मिथ है, आई थिंक दैट्स ए मिथ के इसमें प्रॉस्पेक्ट है इसमें प्रॉस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि टैलेंट जिसमें है उसको कोई चीज रोक ही नहीं सकती। ही कैन ग्रो by leaps and bounds because of the हाँ technology today. They can do their हाँ own work whatever they like. तो हाँ फिर हमने उस डिस्कवर किया कि उसको बचपन से ड्राइंग वो ड्रॉ करती थी, मम्मी से छुप छुप के ड्राइंग करती थी एंड ऑल दैट। तो वो बोल रही थी मुझे अभी जो मैं कर रही हूँ वो पसंद नहीं है, मैं दूसरा करूंगी क्योंकि उसमें प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो मैंने बोला वो भूल गई तुमने जो मुझे स्टोरी बताई थी कि तुमको ड्राइंग भी तो पसंद है, तो यू कैन डू दैट करके। तो फिर उसने फिर उस पर सोचना शुरू किया और फिर देखना शुरू किया कि क्या मैं बोलती हूँ कि मैं जरूरी नहीं है कि वही करे, लेकिन एक इन्फॉर्म डिसीजन लो, ताकि बाद में जैसा अब मैं सोच रही हूँ अरे जब मैंने ऐसे क्यों किया कि प्रोस्पेक्ट्स देखे और ये नहीं देखे कि क्या अल्टीमेटली क्या हुआ। मेरी वो जो मैं एमसीए वो सब पढ़ी थी, अब मैंने अपनी लाइन तो चेंज कर ली। तो जी तो हम अगर कैलकुलेटेड डिसीजन लेते तो आपका भी अब मुझे वही पॉइंट दिख रहा है कि व्हेन नाउ यू आर थिंकिंग कि अब मुझे क्या करना है। तो अब आपके सामने कितने चॉइसेस हैं, आप वो पूरे लिखना है। तो लेट्स डू द मैथ्स के अब आपके सामने आपको इतने सारे चीजें आपने किए इतने दिन, व्हाट आर द टॉप हम्म 5 थिंग्स आपको लगता है कि आपको लाइक यू विल गेट मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इवन इफ यू डोंट गेट पेड? ऐसी कोई चीज होगी या यू वुड नीड हाँ टाइम? हाँ नहीं एक्चुअली ये है मेरा सिंस डिग्री कॉलेज इटसेल्फ हमारे पास एक्स्ट्रा कोर्सेज के लिए 5 कोर्सेज के लिए लोग अप्रोच कर रहे थे एक्सटर्नली वन वाज रिटेल मैनेजमेंट वन वाज ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड वन वाज इवेंट मैनेजमेंट तो जब अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट में आई अटेंडेड दैट आई रियली वांटेड टू गेट इनटू इट इवेंट मैनेजमेंट में ओके बिकॉज ग्रेट, देयर इवन देयर यू मीट सो मेनी सो पीपल और मेनी कुछ करने पीपल, में accomplishments एक करेक्ट फुलफिलमेंट करेक्ट, मिलता है और इफ यू डू इट द राइट वे देन वहीं का वहीं यू गेट एन दूसरा कुछ मिल जाता है एंड इफ बिल्कुल सही पीपल बात। अप्रिशिएट एक्सेट्रा एंड इवन उसमें ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज भी है You तो like आई रियली लाइक traveling, yeah, I ट्रैवलिंग read that you like यस traveling, आई that's true. आई रियली लाइक ट्रैवलिंग तो आई थॉट उसमें चाहूंगी बट घर वाले they were not comfortable with that option so and even to mention this my sister also does art workshops तो Ah, रिसेंटली okay, उसने हाँ तो उसने कुछ पैटर्न्स का वर्कशॉप किया था इन माशाल्लाह, प्लेस कॉल्ड पाइगा टूम्स एंड इवन इन वन आर्किटेक्चरल कॉलेज सो मेरा क्या है आई हेल्प हर बिकॉज शी स्पीक्स देयर तो वो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन करना रहता है तो आई oh, हेल्प हर इन दैट वे तो उसमें ना इवन आई एंजॉय डूइंग दैट ऑफ कोर्स आई डोंट गेट पेड अगेन इन दैट एक तो घर का है ऊपर से या सो but you get an इसीलिए idea at least, yeah, you get an idea okay, how does it feel, you get an feel yes of how it, it feels whether you can yes take it up as a profession. I think that's very valuable ना, आजकल तो लोग पैसे yes देके कर रहे हैं कि मतलब they want to know experience something and then take a हाँ calculated decision. So that's good कि you हाँ got already experience. So can yes we say so that event management is yeah on the event top? management anytime Wow. And now anytime if I give you a choice between event management and training, what would you choose?
The only reason I would choose maybe because अभी कैसा है, because of घर का माहौल, और that way I would have to choose training because it's work from home, because it again event management I have to move out of the house. I Hmm. don't know if this is a good time for me to choose event management, maybe later, Yeah, but yeah, exactly. That's what mm, my point is. See, I mean, we need to be very this thing. So this is, mm, can we say they are on both same level? Because training में भी आपको travel करने का मौका मिलेगा, right? हाँ मिलेगा अगर उतना रीच हो गया मेरा तो, या ऑफ कोर्स। फरीन, फर्स्ट थिंग या ये कि आप हम्म अब हमसे जुड़ गए तो आपको आप कोई छोड़ेगा नहीं, अब आपको रीच होना ओके, ही है। आप इधर इंशाल्लाह, आए यस, हैं ये थैंक यू। कॉल में, तो अब आपके पीछे हम पड़ गए हैं अकाउंटेबिलिटी ओके पार्टनर, ओके। आपको कोई चाहिए होता है, जैसा मेरे पीछे थोड़े दिन पहले मेरे कोच पड़े थे जो अच्छा तो अच्छा। मैंने मुझे करके जब करा के ही छोड़ा वो सब, वरना मैं भी बहुत लेट बैक हुआ करती थी। मैं बोलती थी अच्छा कि हाँ मुझे करना है, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया। इसीलिए तो लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना जैसे कि हम नहीं भाग पाते वैसा, अनलेस कि कोई रेस हो। तो जब रेस होती है तो हम जब भागना ही पड़ता है, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसीलिए लोग कोचिंग में जाते हैं, क्योंकि अभी मैं आपके सामने, मैं कभी कोचिंग में ये नहीं सोच के गई थी कि मैं दूसरों को कोच करी होगी, मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स दूर करने गई थी। लेकिन जब मुझे इतना उसका बेनिफिट मिला तो मैंने बोला कि अब मेरी लाइफ में मैं ये चेंज करूंगी कि मेरा ये पैशन रहेगा, क्योंकि मुझे इतनी हेल्प मिली और मैंने देखा लोगों को कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मिले हैं। तो आप उसकी फिक्र ना करें कि आपसे तो करवाने का तरीका बहुत अच्छा है मुझे, लेकिन आप बस मुझे ये बताएं कि आपको और ट्रेनिंग्स और इवेंट मैनेजमेंट, कैन आई से दे आर बोथ एट ए लेवल 10? Can are they both at the same passion you have यस to यस love यस। both the things? Okay, it's not that you will be compromising on something if you नो 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 नो। select training. You are as passionate हाँ about training as that, then that works. Okay. तो हमको एक क्लैरिटी ये मिली कि आपको ट्रेनिंग वो करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है फरीद। वंस आपको ये मिल गई ना, तो अब हम देख भी सकते हैं कि कौन से चैनल पे आपको ज्यादा एक्टिव होना है, आपका गेम प्लान क्या रहेगा, आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है एग्जैक्टली, वो पूरा हम गेम प्लान बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग एक्सपर्ट के जैसा आप अपने आप को पहले पोजीशन करेंगे, राइट? ओके क्योंकि ओके। आपने, मेरे ख्याल से आपने जब पहले भी सेंटर हेड के जैसा जब काम किया है तो आपको थोड़ा एक्सपोजर तो मिला ही होगा, जी जी। क्योंकि आपने काफी कोर्सेज वगैरह में इन्वॉल्व किया है, इन्वॉल्व हुई है, एंड देन फिर इसमें भी हुआ है। तो जब आप ट्रेनिंग के लिए, तो मैं क्या चाहती हूँ, आप, there are a couple of people who are top in training. ओके। आप लिंक्डइन में देखिए, दे आर डूइंग मेनी ट्रेनिंग्स अब्रॉड, इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं। सो व्हाट आई वांट, जब हमारे सामने एक मॉडल होता है ना, तो इट इज इजी फॉर अस टू एम्यूलेट, कि हमको यस एक तरीका मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। तो आप आपकी पसंद के, नॉट नेसेसरी, अच्छा ये तो ट्रेनिंग हो गई, अब ट्रेनिंग किस चीज में वो भी हमको देखना पड़ेगा, राइट? हाँ। ट्रेनिंग, अब आप क्योंकि आपने काफी चीजें की हुई हैं, तो कोई ऐसी चीज है जो आपके बहुत दिल के नजदीक है, जो आपको एकदम एक्साइट करती है, जो आप पढ़ाते वक्त, और या लाइक कोई सब्जेक्ट है ऐसा कि जिसमें आप डीप 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 जाना चाहती हैं, और वैसी कोई चीज है जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती है कि आपको टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम किधर चले जा रहा है, ऐसी कौन सी चीज है? आपको कुछ, या हाँ तो फर्स्ट में मेरे जो घर के बच्चे रहते हैं ना, लाइक रिलेटिव्स के बच्चे या ऐसा कुछ, या फ्रेंड्स के सिबलिंग्स, तो उन लोगों के लिए आई यूज टू टेक दिस प्रेजेंटेशन, कैसे बनाते हैं, हाउ टू गिव अ प्रेजेंटेशन, और हाउ टू जी जी। रिसर्च फॉर अ टॉपिक, हम्म। क्योंकि उन लोगों को कॉलेज में प्रेजेंट करना होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसीलिए मैं आई हैव टेकन ऑल्सो विथ फ्री वर्कशॉप्स, जैसे जूम वर्कशॉप्स मैंने किए थे, एंड आई टुक टू हैव अ मेक अ ग्रुप एंड टू टीच देम ये ओके। दिस साइट इज गुड फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर यूजिंग प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, और दिस सॉफ्टवेयर इज गुड इन सर्टेन वे। तो उस तरह से मैंने थोड़े किए थे, एमएस ऑफिस के थोड़े प्रेजेंटेशंस किए थे। एंड ओवर माय जर्नी जो जो मैंने सॉफ्टवेयर सीखे हैं, मैंने पर्सनली सीखे, तो वो सॉफ्टवेयर इन एन इजियर वे टू दूसरों को भी पता चले कि बताने के ये, लिए, जी जी। हाँ,
तो उसमें जीरा सॉफ्टवेयर बोल के है, एंड माइक्रो स्टेशन बोल के है, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है। दैट इज व्हाई इवन इट्स मोर कंफ्यूजन, बिकॉज एक चीज नहीं है वो। हाँ, It's like whatever I know, if I'm able to in a simpler terms explain to someone, तो उस तरीके से I would like to do something in that वेरी way. गुड, वेरी गुड। तो हाँ, अब क्या हो रहा है, जैसा मैंने बोला है कि बहुत सारे चीजें हैं। अब जैसे कि एक हाँ, ये टेबल है, हाँ, टेबल पे मेरे हाँ, बहुत ज्यादा चीजें रखी हुई हैं। तो अब हाँ, मुझे क्या होता है कि अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं पहले क्या उठाऊं। और अगर मैं हाँ, ऐसे ही उठाती हूँ तो वो कुछ गलत भी आ जा सकती है। तो मुझे हाँ, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि आपको ये करना पड़ेगा कि अपने आप से थोड़ा कन्वर्सेशन करना पड़ेगा कि मैंने इतनी चीजें की हुई है। I know it's a very हाँ, difficult discussion with one own self, and actually जैसा आपने बोला, करके ही पता चलता है, ऐसा नहीं हम हाँ, बोल सकते लेकिन ये गुड पार्ट ये है कि आपने काफी चीजें अभी तक एक्सप्लोर कर ली है। तो मेरा हाँ, पहला फीडबैक ये रहेगा कि अब आप स्टॉप लगा दें, जहां तक अभी तक ओके, एक्सप्लोर किया ना नई चीजें। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होती तो ये करती कि पहले मैं जितने चीजें अभी तक की है वो पूरों को लिख लेती कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। और ऐसी इसमें से मैं, अगर मुझे चुनना रहा कि टॉप टॉप टू थिंग्स बेसिकली, अगर मेरे को चुनना रहेगा तो वो क्या चीजें रहेंगी जो इवन इफ आई डोंट गेट पेड मैं करूंगी ये, क्योंकि मुझे करने में बड़ा मजा आएगा। मुझे आई विल नॉट रियली फील कि एज इफ आई एम वर्किंग। तो ऐसी कौन सी कुछ कोर्स रहेगा या जो भी रहेगा, क्योंकि अगर आप जीरा भी चुनती हैं तो जीरा के भी कोर्स करने वाले आप स्पेशलिस्ट हो सकती हैं उसकी, हाँ, हाँ, जीरा हाँ, के लिए यू विल बी द गो टू हाँ, पॉइंट लाइक। हाँ, हाँ, लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि टेक्नोलॉजी का ऐसा है कि अब जीरा इज लाइक, जीरा में अब कितना और आप घुस सकती हाँ, हैं और कितना कर सकती हैं। तो ऐसे चीजें मेरे लिए थोड़ा जरा वो लगता है मुझे, लाइक आई डोंट गेट वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी जाओ फिर कम है, क्योंकि अपडेट वो होना हाँ। पड़ता है। जी जी, एग्जैक्टली अभी अभी मैं एक पॉइंट में अगर मैं परफेक्ट भी हो गई, फिर थोड़ी दिन में फिर कुछ और आएगा, फिर मैं, हाँ, हाँ, तो हाँ, नेवर हाँ, एंडिंग साइकिल चलते रहती है। तो फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि हम पीछे रह गए, लाइक वी हैव हाँ, फॉल बैक ऑन। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप एक्साइटेड होती हैं वो चीज से, बिकॉज एनी वे यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, सो देर इज नो हाँ, हार्म। और आई थिंक उसमें इसलिए भी वैल्यू भी बढ़ के रहती है कि अगर आप जीरा का नया वर्जन आता है तो। लेकिन आप जो भी करती हैं, अब ये आप करना चाहिए कि आप हर चीज ना करें, आप वो ही सेलेक्ट हम्म, करें। जैसा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो मुझे बताइए, आपका हड्डी का पेन है तो आप जाके एमबीबीएस डॉक्टर को तो नहीं दिखाएंगी, राइट? आप हड्डी के डॉक्टर के पास ही जाएंगी, हाँ, क्योंकि हमको तो और क्योंकि हमको मालूम है कि उन्होंने उसमें पढ़ा हुआ है। तो आपके हाँ, पास अगर कोई अप्रोच होना है तो आप समझिए कि मैं आपके पास आई हूँ तो मुझे कुछ पता चला है कि आप इसमें स्पेशलाइजेशन है आपका, तो वो स्पेशलाइजेशन को अट्रैक्ट होकर मैं आऊंगी, करेक्ट? तो हम्म, आपको ये हम्म, सोचना है कि अगर आपको करियर में ग्रो करना है, जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं तो वी नीड टू सेलेक्ट वन ऑफ द थिंग। तो और वो कोई हाँ, आपको गाइड नहीं कर सकता, दे कैन गिव यू द ऑप्शंस बट द वन टू सेलेक्ट हाँ, वुड बी यू। हाँ, will have to be always you, because then you will have that satisfaction. So don't worry, you spend some time of yours brainstorming with yourself and maybe give yourself a week or something, a week or 2 weeks. No worries, हाँ, क्योंकि you need to you really make the best choice. अच्छा, तो अभी 10 minutes बचे हैं हमारी मीटिंग के, तो यू रियली नीड टू मेक द बेस्ट चॉइस। तो आप देखें कि आपने जो इतने सारे कोर्सेज किए हुए हैं फरहीन, उसमें से आपको कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और उसके बारे में हर चीज लिखें कि इसमें मेरे को हाँ, कितना अपग्रेड करना पड़ेगा, इसमें मुझे क्या चैलेंजेस होंगे, इसका सॉफ्टवेयर मेरे पास रहेगा। आप पूरा एंड तक आप ऐसा विजुअलाइज करना है आपको कि आपके पास कोई स्टूडेंट आया तो how would you able to actually navigate him? Will you have to buy the license? Will you have to buy the software? Will you कि आप हम्म, उसको आगे पूरा प्रोजेक्ट करवा के, मतलब उसको बोलना है कि अगर मैं फरहीन के पास आ गया तो मेरा पूरा ये प्रोजेक्ट पूरा हाँ, कंप्लीट होकर जाएगा। इफ ही हाँ, इज इम्प्लीमेंटिंग ए प्रोजेक्ट इन जीरा देन हाउ वुड यू डू इट करके आप एक पूरा सोल्यूशन रहेंगे, एक पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन आपको वो करना रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो
आपको इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहले से आइदर इट कैन बी जीरा, और जो आपने बोला कुछ ऑटो कैड वगैरह भी आपने मेंशन किया था, हाँ हाँ जो जो भी आपके हैं, तो उसमें आप कोई ऐसी लाइन दे। पहले तो मुझे पता है क्योंकि हम लेडीज हैं, हमको काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अदर देन दिस एंड ऑल दैट। तो आप ऐसी कोई चीज सेलेक्ट कर सकते हैं जो लाइक मतलब क्या बोलना चाहिए, जो ऐसी वास्ट ना हो आईटी की तरह, कि आपको बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहना पड़ा, क्योंकि आईटी इज ग्रोइंग एट ए स्पेस दैट नो अदर फील्ड इज ग्रोइंग, एज यू नो, हाँ बिकॉज हाँ तो आप उसमें आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें कि देखें कि आईटी में ही आपको जाना है या दूसरे ऐसी कोई फील्ड्स में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, क्योंकि उसमें फिर भी लिमिटेड चेंजेस रहेंगे शायद। लेकिन इसमें के कोर्सेज तो सॉफ्टवेयर ही बदल जाए, पता चला कि आप जीना नहीं अभी कुछ और एकदम दूसरा हाँ आ गया, तो फिर हाँ, क्या हो सकता है। करेंगे? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हाँ मीन, राइट? क्योंकि हमारे साथ हाँ खुद हुआ है। हमने बहुत, हमारी कंपनी में बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर सिल्क लिया था, सिल्क में पूरे ट्रेन हुए, उतने में क्यूटीपी आ गया। तो होता है अक्सर आईटी में। तो आईटी इज ए वेरी डायनामिक फील्ड, तो यू नीड टू मैच समथिंग जो आपके लिए टिल एंड पॉइंट आप सोच सके। तो पहला तो आपका ये हो गया कि आप ट्रेनिंग में जाएंगे, दूसरा ये हो गया कि आप अपने आप से थोड़ा आपको टाइम देंगे और टॉप 3 थिंग्स लिखेंगे जो आपको लगता है कि ये आप इसमें ट्रेनिंग कर पाएंगे, ओके और ये टॉप 3 चीजें आप फिगर आउट करके फाइनल करें अपने से। और उसके हिसाब से जैसा कि समझिए आपका कोई एक आपने सेलेक्ट किया ऑटो कैड का या जो भी है, तो आप ये कर सकती हो, तो उस पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हो और अपना खुद का उस पे आर्टिकल्स लिख सकती हो, ब्लॉग्स लिख सकती हो, थोड़े यूट्यूब वीडियोस बना सकती हो, ताकि लोगों को पता चले कि मतलब आप क्या वैल्यू दे रही हो। हाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है कि क्या होता है, लाइक आगे क्या होगा, उनको इंटरेस्ट होता है कि अभी क्या आप उनको हेल्प कर पा रही हो। तो इफ यू आर सॉल्विंग समवन्स प्रॉब्लम, देन पीपल विल ऑटोमेटिकली गेट विल कम टू यू टू टेक हेल्प। तो आपको उसमें बहुत सारे एवेन्यूज रहेंगे जिधर आप फ्री सेमिनार्स भी कर सकती हो उस पे, हाँ फ्री सेमिनार्स कर सकती हो, वेबिनार्स कर सकती हो, वर्कशॉप्स कर सकती हो। अगर आपका जिधर भी टारगेटेड है, समझो आपका जो कोर्स है अगर कॉलेज स्टूडेंट्स को है, तो आप जरूरी नहीं है हर चीज ऑनलाइन ही किया जाए, ऑफलाइन में बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है। जाके स्टूडेंट्स में कॉलेजेस में आप अप्रोच करके उनको एक फ्री सेशन दे सकती हो, ताकि उनको पता चले। हाँ बच्चियां कंफर्टेबल होती है ना, कोई अगर लेडी इंस्ट्रक्टर हो, हाँ तो दे विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, दे कैन कनेक्ट विथ यू ऑन जूम एंड यू कैन स्टार्ट योर थिंग लाइक दैट। तो वो आपके लिए बड़े आसानियां हो जाएंगे। लेकिन ये सब जब होगा जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे और अपना थोड़ा सोशल प्रेजेंस, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो सोशल प्रेजेंस बनाने का है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अगर हम 4-6 उसमें जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। एक को पकड़ के चले, एक या दो मैक्सिमम, उस पे हम फोकस्ड रहेंगे ना। क्योंकि जब हम बहुत सारे चीजें पकड़ के चलते हैं तो फिर ना ये सही हो पाती है ना वो सही हो पाती है। हाँ, अगर आपके पास टाइम बैंडविड्थ काफी है तो वो अलग बात है। लेकिन यूजुअली एज अ स्टार्टर, जैसा अगर आप स्टार्ट कर रही हैं, तो अगर आप कोई एक चैनल पकड़े और आपका रिलेवेंट, अगर आपका आईटी का है, अगर आपका करियर रिलेटेड कुछ है, तो आप लिंक्डइन पकड़ के चल सकती हैं। नहीं, आपका ऑटो कैड या जो भी है, आई मीन स्पेसिफिक चैनल रहता है फेसबुक का, लाइफ और डिफरेंट चीजों के बारे में होता है, करियर रहेगा तो लिंक्डइन है। और इनफैक्ट उसमें भी ऐसा होता है कि टाइम भी मैटर करता है, आप कब अपने पोस्ट डालते हैं, आप कुछ शेड्यूलिंग हाँ बनाओ, अपना राइट तरीके का शेड्यूलिंग बनाओ कि मैं हर 2 to 3 डेज में मैं ऐसी पोस्ट डालूंगी जिससे आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसको क्या हेल्प होगी। पहले आप अपने माइंड में एक सीरीज बना लो कि क्या करना है, फिर आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं, फिर वो शेड्यूल कर सकते हैं, ये पोस्ट हर 3 दिन में, हाँ वैसा आपको पता ही है सब। तो उससे आपको ये होगा कि लोगों को पता चलेगा कि आप उनकी कैसा मदद कर सकते हो, और फिर ऑटोमेटिकली लोग आपको अप्रोच होंगे। तो हाँ, मेरे ख्याल से आपको पहले पहले अपने आप पे वर्क करना है। एक बार आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए और आपको ये हाँ पता चल जाए कि व्हाट यू विल बी रियली हैप्पी विथ एंड पैशनेट अबाउट, तो फिर आपके लिए रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं है। और फॉर दैट मैटर आपने ये बोला था कि इंस्टा पे ग्रो होना है, तो वही है कि इंस्टा पे तो आपका ऑलरेडी, जैसे कि
एक पोस्ट का कैसे, आपको ये देखना है कि मैं कब एक पोस्ट देखती हूँ। आप कब देखते हैं, आप इतने सारे पोस्ट देखते हैं, तो व्हेन यू गेट क्यूरियस, या हाँ जब आप क्यूरियस होते हैं तो वो देखते हैं ये क्या होगा। तो आपको हाँ। ऐसी पोस्ट डालना है जिससे लोग क्यूरियस होते हैं, नॉट लाइक पुशी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? कि जिससे हाँ पहली बात आइदर लोगों की हेल्प हो, या लोग इंक्विजिटिव हो जाएं कि आखिर क्या है ऐसी चीज जो हमें मिल रही है इधर। तो हाँ। ये हम इसका पूरा सेशन लेते हैं कि कैसे वो करना है एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको खाली ओवरऑल पॉइंटर्स दे रही हूँ कि कैसे आप वो कर सकते हैं, अपना टारगेट कर सकते हैं कंटेंट। और आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर समझिए आपका ऑटो कैड है, जो भी है, आप ऑलरेडी उस पे जो है ना इंफॉर्मेशन, लाइक जैसा हमारा आईटी का है तो माइक्रोसॉफ्ट इज लाइक आईटी का दिस थिंग, राइट? तो हम माइक्रोसॉफ्ट हाँ की न्यूज रिलेटेड ऑन अवर थिंग हम डालते हैं लोगों से, क्योंकि वो वेरीफाइड सोर्स होता है ना, वो पब्लिश करता होता है, तो लोगों को मालूम नहीं है। तो हम वैसे चीजें करते हैं ताकि कि लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिले कि कैसे पोस्ट डालना है, और कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, नॉट सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, हाँ हाँ। है ना, कि कोई कंपनी की न्यूज एंड एवरीथिंग। तो आप ऐसे टारगेट कर सकती हो, लोगों की कैसी मदद करना है, बस ये सोचना है आपको। आगे ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई आए मेरे पास एंड एवरीथिंग। अभी शुरू में आपको बिल्कुल वैसे माइंड फ्रेम से नहीं जाना, क्योंकि आप जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें इन प्लेस हो जाएंगी, तो उसकी फिक्र मत ओके। करें। आप ये देखें कि आप कैसा इंस्टा पे शेड्यूल करें, एक स्ट्रैटेजी बनाए अपनी पोस्ट्स की, और मे बी इन 2 days आप पोस्ट करें, लेकिन इट शुड बी समथिंग विच इज रियली गिविंग वैल्यू टू पीपल, देन ऑटोमेटिकली स्टेज विल बी सेट फॉर यू फॉर हिम, यस। इंशाल्लाह। तो क्या आपको कुछ आइडिया मिला, कुछ पॉइंटर्स मिले, कुछ हेल्प हुई उससे? हाँ हाँ हमारे लास्ट 2 minutes है हाँ अब। हाँ हाँ। वही अभी वही चल रहा है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो गई है हालत। तो वो यार। अक्सर होता है, अक्सर होता है लोगों के साथ। आप फंस नहीं है, बट आप मैं बोलती हूँ ऐसे लोगों को जो, जिनको पता है, यू नो, दे नो कि व्हाट इज दैट। द फर्स्ट स्टेप तो एक्नॉलेजिंग होता है ना। बहुत से लोगों को हाँ आप बोलो कि आप ऐसे करो तो वो लोग मानते भी नहीं है, लेकिन आप, हाँ आपकी अच्छी बात ये है कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वे देर नो व्हाट they have to fix, क्योंकि that's the first step. If you know what you have to fix, then रास्ता आसान है। बहुत से लोग उधर ही हाँ अटक जाते हैं, they don't agree also। तो हाँ आपके जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी कोचेबल होते हैं, और आपने देखा होगा पूरे टॉप परफॉर्मर्स जो है उनका कोच होता है, क्योंकि वो इंसानी फितरत है, अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है हमको कि हमको कोई साथ में पकड़ना होना चाहिए जो हमको उठा सके। हाँ, अगर आप उठा सकते। मुझे 1 साल पहले मिलती, 1 साल पहले तो फिर भी ठीक था, 2 साल पहले मैं इतनी कंफ्यूज हुआ करती थी, आप तो भी फिर भी कंफ्यूज नहीं है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज पर्सन रहती थी कि मैं बिल्कुल कुछ डिसाइड नहीं कर पाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग से मुझे फायदा हुआ, और आपको भी मैं चाहती हूँ कि वैसे ही क्लैरिटी मिले अब, कि आप अपने आप के साथ एक डायरेक्शन आप सेट करें, और उसके लिए वर्क करें, और आपके लिए एक्शन आइटम्स बनाएं, पर डे 3 एक्शन हाँ आइटम्स बनाएं, और फिर ओके। उस पे वर्क करें। तो अब कॉल एंड होने वाला है हमारा विद दैट। फरीन, मैं आपको अब थैंक करना चाहूंगी अगेन। थैंक यू सो मच थैंक यू। for coming थैंक into यू। this session, and I had a great time and hope you had a very productive session. यस यस ऑफ कोर्स यस। Thank थैंक यू you. वेरी Thank you. मच। See you soon. Then take care, Fareen. यस Take थैंक care. यू। बाय। Bye. Bye.